मस्त लग रही हो। ठीक है, ये बढ़िया है आनंद की बात। हाँ बारात में। Good evening, sir. I hope I'm audible. Sir, I guess you're on mute. Yes, you are audible. Yes, sir. Good evening, sir. So we'll wait for 5 minutes for all the participants to join in, and then we'll start the session. Yes, yes. Meanwhile, I can share the screen. Sure, sir. So I have logged in from two devices. One is laptop and mobile. So the host can see this from Ashish, name of Ashish. So we have made you the co-host. One more Ashish is there. Can you make that one also co-host? Done, sir. Kindly check. Okay. Yes. We can start with 2 minutes of silence while others join. Okay.
So should we start the session? Yeah, sure. Uh, a very good evening to one and all, and we welcome you to the masterclass session. Today, the session will be taken up by Mr. Ashish Agarwal. Mr. Ashish Agarwal is a Gandhian and a systemic change enabler. Post his MBA from IRMA, he established Paryavaran Mitra, a Gandhi ashram-based social enterprise holistically empowering rag-picking communities using solid waste management as a tool. For the last few years, he is advocating mindful consumption as a tool for achieving sustainable well-being at personal level. His initiative of living with just 33 personal items was highly appreciated with the larger audience. He has conducted talks and workshops in India, the UK, and the US. He has authored 2 books, Demystified and EcoBooks. He is the founder of Bridge for Change Foundation that aims to professionally contribute towards a just society by addressing the fundamental issues at a systemic level using mindful consumption as a tool. We welcome you, sir, and now the stage is all yours. Thank you, Arpita ji. I can see around 80 participants are there. Should we wait for something or should we go ahead? Sir, I guess we can start because now we have 84. So in 2-3 minutes, we'll be having quite enough. Okay, perfect. So good evening, everyone. Today we'll be talking about how tiniest of actions in our personal journey can enhance our well-being and also enable us contribute towards the larger social challenges. So the topic that we have chosen is mindful consumption. And we believe that it is nothing less than a Brahmastra. We'll see how it is through one of the exercises that we will do in coming minutes. So everybody, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will be asking lots of questions. So in order to make it engaging, you can type your answers in the chat box so that we can get to know that we are on the same page. The first question in the beginning is one word that comes to your mind when you hear the word mindfulness. Mindfulness सुनते ही सबसे पहला विचार, सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. One word that comes to your mind when you hear the word mindfulness. वो तकिया लगा दो. सब लोग यही है कि ऑनलाइन मीटिंग शुरू किए हैं 4 बजे से. ये टकले हैं. ये सवाल है आप लोगों से. माइंडफुलनेस शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में कौन सा विचार आता है वो आप शेयर करें. Yes. Okay. Filled with knowledge, ideas, सचेत, होशियार. Perfect. अगला सवाल है, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं. कि we normally say that we tried meditation at some point of our journey. हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी मेडिटेशन जरूर ट्राई किया है, प्रैक्टिस की है. अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप यस लिख सकते हैं. अगर आपने आज तक कभी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं की है तो आप नो लिख सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया है. तो जिन लोगों ने किया है उनसे अगला सवाल यह है कि कई बार हम लोग ये भी कहते हैं अपने लाइफ में that we have tried meditation but it didn't work out. कि मैंने कोशिश की मेडिटेशन करने की लेकिन मेरे लिए
जमा नहीं, मुझे मजा नहीं आया, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप यस लिख सकते हैं, अन्यथा आप यू कैन राइट नो, दैट यू ट्राइड मेडिटेशन बट इट डिडंट वर्कड आउट। So anyone in this group wants to share the physical environment that is present while we do meditation? Meditation करते समय वातावरण कैसा रहता है जब भी हम लोग करते हैं, किसी क्लास में, अपने घर पे, या जब भी कहीं भी करते हो, तो उस समय का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई अनम्यूट करके भी शेयर करना चाहे कर सकते हैं, अगर अलाउड है तो। आई डोंट नो। गुड इवनिंग सर। हेलो यस। सर, वातावरण बिल्कुल शांत रहना चाहिए। मैं ज्यादातर मेडिटेशन टेंपल में करता हूँ, ये कि मतलब माहौल भी उसका वाइब्स भी, आपको पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, एनवायरनमेंट पूरा पॉजिटिव वाइब्स चाहिए। नहीं तो मेडिटेशन मतलब इनकम्प्लीट, मतलब अच्छा डिस्टरबेंस होगा तो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल शांत माहौल चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। और जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते हो तो उस समय आपका जो पोस्चर होता है, आपके जो फिजिकल जिस तरीके से आप बैठते हैं, उसके बारे में कोई शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कॉन्शियस माइंड रहना चाहिए सर। और मतलब बिल्कुल मतलब इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मतलब एक जगह पे कंसंट्रेशन भी होना चाहिए और कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? सर, ताराशीष। ताराशीष, ओके। कोई और भी और ऐड करना चाहेंगे इन्होंने जो बोला उसमें, कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय आपका पोस्चर, आपकी सोच कैसी रहती है? ध्यान मुद्रा में होना चाहिए सर। अच्छा। आसन होना चाहिए, ध्यान मुद्रा में होना चाहिए। अच्छा। और हम लोग जब कर रहे होते हैं तो आंखें बंद रहती है और किसी वर्ड के यस ऊपर या सर। किसी इमेज के ऊपर हम यस। लोग फोकस कर रहे होते हैं ना। यस सर। हाँ, तो हम लोगों ने जब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश की तो ये समझ में आया कि जब हम लोग ध्यान कर रहे होते हैं, जहां भी कर रहे हो, तो उस समय हम लोग कोशिश करते हैं, जैसा आप लोगों ने सामने बोर्ड में लिखा है, एकदम शांत वातावरण हो। हम लोग अपनी आंखें बंद रखते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कि ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत ना हो। उस समय किसी से बातचीत हम लोग नहीं कर रहे होते हैं और किसी इमेज पे, किसी वर्ड पे फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एसेंशियली अगर देखा जाए तो जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय हम लोग जितने भी कंजम्पशन के मायने हो सकते हैं, कंजम्पशन के तरीके हो सकते हैं, सबको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग किसी भी सेंस ऑर्गन से कुछ भी कंज्यूम ना कर रहे हो, ताकि डिस्ट्रैक्शंस, ताकि क्लटर हमारे दिमाग में कम से कम रहे। इस सेंटेंस पे इफ somebody wants to share anything, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम लोग कर रहे हैं तो उस समय हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कंजम्पशन? इस दृष्टिकोण से कभी हम लोगों ने सोचा है इस चीज को? ध्यान करते समय हम लोग अलग अलग सेंस ऑर्गन से कुछ भी चीज कंज्यूम करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, मिनिमाइज कर चुके होते हैं जब हम लोग ध्यान कर रहे होते हैं। तो आप लोग उससे अग्री करेंगे, या अगर कुछ इस पे क्वेश्चन हो तो यस प्लीज सर। पूछिए। तो हम लोग जब रिसर्च किए तो हमें यही समझ में आया, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम आवर 10 years ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट in order to enhance the impact of a powerful tool like meditation, mindful consumption can be a very very important tool. जैसा हम लोगों ने बोला कि जब मेडिटेशन कर रहे होते हो तो उस समय एसेंशियली हम लोग बहुत माइंडफुल रहते हैं अपने वातावरण के अराउंड, कि हम लोग बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस अपने अंदर कंज्यूम ना कर रहे हो। और उन्हीं लोगों के लिए मेडिटेशन जैसा पावरफुल टूल वर्क भी करता है, जो अपने लाइफ में वो छोटे छोटे शिफ्ट लाते चले जाते हैं। हम में से जो लोग वो शिफ्ट नहीं लाते हैं, वो लोग, फिर हम लोग कहते हैं ना कि वी ट्राइड मेडिटेशन बट इट डिडंट वर्क आउट।
वो हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ऐसा होता है जो लोग अपनी जिंदगी में वो बदलाव नहीं ला रहे होते हैं। लेकिन वो जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा होता है कि जो अपने पर्सनल लाइफ में जहाँ से ये स्ट्रेस ओरिजिनेट हो रहा है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा वर्किंग आवर्स है, वर्किंग कल्चर है, हमारी फैमिली के रिलेशंस है, हमारा फूड फैशन का जो हैबिट है, उससे जो नॉइज हो रहा है, उससे जो स्ट्रेस हो रहा है, जब तक उसको ही एड्रेस नहीं किया जाता है, तब तक कई बार मेडिटेशन जैसा पावरफुल टूल भी उतना यूजफुल नहीं बन पाता है। और इसीलिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा भी सारा फोकस है कि हम लोग किस तरीके से माइंडफुल कंजम्पशन को प्रमोट करें। सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लास्ट के लिए रख सकते हैं। सर एक इम्पोर्टेंट है आप पूछ और लीजिए, जिस बारे में मतलब रेलिवेंट है। बोलिए बोलिए। सर जब भी मैं मेडिटेशन रूम में करने की कोशिश करता हूँ इट डिडंट वर्क, बट जब भी मैं टेम्पल में करता हूँ वो सक्सेस होता है। द रीजन क्या है इसके पीछे? नहीं, जो आप बता रहे थे शायद आप ही ने आंसर किया था कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल होता है। वहाँ पे हम लोगों से एक्सपेक्टेड होता है कि हम लोग शांत रहे, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हमारे बहुत कम रहते हैं। और जैसा ध्यान में बोला भी गया है कि ध्यान में जितने ज़्यादा लोग एक साथ कर रहे हो उतना पावरफुल होता चला जाता है वो एक दूसरे की एनर्जी से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई बिलीव कि पावरफुल जगहों पे करने से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा महसूस हम लोग करते हैं। ठीक है। अगला सवाल आप लोगों से ये है कि माइंडफुल कंजम्पशन सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। माइंडफुल कंजम्पशन सुनते ही सबसे पहला विचार आपके दिमाग में क्या आता है? Mindful consumption, when we hear the word mindful consumption, what is first thought that comes to your mind? हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं दिन में? कुछ भी एक चीज लिख सकते हैं, कोई भी एक एक चीज लिखना शुरू कीजिए। तो हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं दिन में, अपने डेली लाइफ में क्या क्या कंज्यूम करते हैं? फूड, वाटर, एयर, एनर्जी, गुड्स, और क्या क्या कंज्यूम करते हैं? नॉलेज। बिल्कुल, तो जैसा आप लोग कह रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। सो व्हेन वी से दैट माइंडफुल कंजम्पशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, इट encompasses a larger canvas। टैंजिबल चीजों के बारे में भी हम लोग बोल रहे हैं और इनटैंजिबल भी बोल रहे हैं। टैंजिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड, फैशन, ट्रैवल एक्सेट्रा। इनटैंजिबल की जब बात की जाए तो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे प्रोफेशन है, हर तरीके से जो भी एनर्जी हम लोग लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस, हम लोग उस एनर्जी को लेने के प्रोसेस में कैसे माइंडफुल हो सके, दिस इज ऑल अबाउट माइंडफुल कंजम्पशन। कि हम लोग क्या एक बार पॉज ले सकते हैं क्या, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्या, और जरूरत हो तो रेगुलेट कर सकते हैं क्या। अदरवाइज हमारी लाइफ में नॉर्मली सब कुछ होता है लेकिन समय नहीं होता है। तो बट कैन वी डेवलप अ प्रैक्टिस वेयर वी आर पॉजिंग फॉर अ वाइल, reflecting on our habits, reflecting on our lifestyle, and if there is some need to regulate any aspect of our lifestyle, can we regulate it? तो आज वाले टॉपिक का, आज वाले सेशन का सारा फोकस इसी चीज पे है कि माइंडफुल कंजम्पशन बहुत पावरफुल टूल कैसे हो सकता है, उसको आपके सामने शोकेस किया जाए।
और जैसे ही माइंडफुल कंजम्पशन होता है तो कई बार हमें लगता है अरे यार फिर से कोई बोर करने आ गया, फिर से कोई ज्ञान देने आ गया, फिर से कोई साधु बनाने के लिए आ गया। आज वाले टॉपिक पे इन सारे एस्पेक्ट पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। सिर्फ एक सैंपल का, एक एक्टिविटी का यूज किया जाएगा और उस एक्टिविटी में नंबर्स के हेल्प से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे if we are making small changes in our lifestyle, how it can significantly increase our personal well-being, how it can enable us to contribute towards the larger social challenges, चाहे वो climate change का हो, चाहे वो waste management का हो, या कोई भी चैलेंज अगर आप बात करें। तो यहाँ तक सब लोग साथ हैं या इस पे कोई सवाल, इस पे कोई डिबेट, इस पे कोई भी इनपुट्स? अगर सब लोग साथ हैं तो यस लिख सकते हैं so that we can proceed. Perfect. तो माइंडफुल कंजम्पशन का जो इम्पैक्ट होता है हमारी जर्नी पे, उसको बहुत अच्छी तरीके से इस कोट में समराइज किया गया है। ये कोट कहता है, व्हाट आई नो फॉर श्योर इज दैट व्हेन यू डीक्लटर, whether it is your home, your head, or your heart, it is astounding what will flow into that space that will enrich you, your life, and your family. तो बहुत पावरफुल टूल है ये माइंडफुल कंजम्पशन का। इससे बहुत शानदार इन्हांसमेंट्स हो सकते हैं हमारी निजी जिंदगी में, सोशल लाइफ में, कम्युनिटी लिविंग में। और कैसे होगा उसको आज हम लोग थोड़ा सा एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी का नाम है टाइनी एक्शंस जाइगेंटिक रिपल्स, कि छोटे छोटे एक्शन से बड़े बड़े बदलाव कैसे आ सकते हैं। और उसमें जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज का टूल है कार्बन फुटप्रिंट। आप लोग को सर्वे भी दिया गया था, उसमें भी एक दो सवाल थे इससे अराउंड कि आपने आज तक अपना कार्बन फुटप्रिंट एग्जामिन किया है क्या। तो कार्बन फुटप्रिंट आज हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक राजा की। तो राजा एक दिन सपने में देखता है कि अगर उसके राज्य में, अगर उसके क्षेत्र में, अगर उसके प्रांत में एक दूध का तालाब हो जाए तो उसका जो वर्चस्व है, उसका जो वैभव है और बढ़ जाएगा। इफ देयर इज अ पॉन्ड ऑफ मिल्क द किंगडम, द एमिनेंस एंड ग्रेटनेस ऑफ द किंगडम विल इंक्रीज मल्टीफोल्ड। सो अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि हर गांव वाले को आदेश दे दो कि मेरे किले के बाहर एक छोटा सा तालाब है, ऐसे भी वो सूख रहा है, अगर उस तालाब में सब लोग 1-1 लीटर दूध जाके डाल देंगे तो वो तालाब दूध का तालाब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे प्रांत में 10,000 लोग हैं, अगर 10,000 लोग सिर्फ 1-1 लीटर दूध भी जाके डाल देते हैं तो ये छोटा सा तालाब जो है दूध का तालाब हो जाएगा। एक दो लोग लिख रहे हैं वॉइस इज नॉट ऑडिबल। कितने लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you're audible, sir. Yes, audible, sir. तो शुरू से शुरू करें कि आगे बढ़े? कंटिन्यूस कीजिए सर। ठीक है। तो राजा ने सपना देखा कि इफ देयर इज अ पॉन्ड ऑफ मिल्क इन हिज किंगडम, इट विल इंक्रीज द ग्रेटनेस एंड ग्लोरी ऑफ द किंगडम। उसने फिर अपने मंत्री को बुलाया, इसने फिर अपने मंत्री को बुलाया और उनको आदेश दिया कि सारे गांव वालों को ये बोल दिया जाए कि सब लोग 1-1 लीटर दूध अगर बाहर पैलेस के बाहर, महल के बाहर जो नदी है, छोटा सा पॉन्ड है, उसमें अगर डाल देते हैं तो वो सूखने वाला जो तालाब है वो ऑटोमेटिक दूध का तालाब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हर इंडिविजुअल से कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ म्यूट कर दीजिए जो भी है। तो हर इंडिविजुअल से सिर्फ ये एक्सपेक्टेड था कि वो लोग 1 लीटर दूध जाके इस तालाब में डाल दें। तो अगर 10,000 लोग, चूंकि उनके किंगडम में थे, उनके प्रांत में 10,000 लोग थे, एवरीबॉडी इज पुटिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू पॉन्ड ऑफ मिल्क। तो अगले दिन सुबह राजा फिर वॉक पे जाएंगे और तब तक ये सारी चीजें हो जानी चाहिए।
तो नेक्स्ट डे व्हेन king goes for a walk in the morning along with the whole ministry, he saw that there is no change in the existing pond. अगले दिन जब वो सुबह जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तालाब जैसा था वैसा का वैसा रह गया, कुछ ज्यादा बदलाव उसमें नहीं आया। तो काफी निराशा होती है, काफी वो गुस्से होते हैं और आते हैं और अपने दरबार में फिर अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप में से कोई शेयर कर सकेंगे कि एम था राजा का कि उनके महल के बाहर जो छोटा सा तालाब है वो दूध का तालाब में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए उन्होंने सबको एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर इंसान को 1-1 लीटर दूध जाके उसमें डालना था। बहुत छोटा सा काम था एक इंडिविजुअल लेवल पे, फिर भी वो पूरा नहीं हो पाया। इसका क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? कोई भी अगर हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। सर, गुड आफ्टरनून सर। रीजन ये था कि उस समय जो उनके भक्त थे तो उसमें से सभी की सोच ये होगी कि अगर मैं उस तालाब में जाके पानी डाल दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, आई थिंक। ठीक है, तो जो सभी जो फकीर ने जो वचन फरमाए थे वो साधु महात्मा थे, तो उनकी तो यही थी कि कल को जैसे जग करना है, समथिंग जो भी है, कि बहुत सारा दूध इकट्ठा होगा। तो उसमें से एक ही सोच है, वो एक ही सोच कन्वर्ट होगी कि सभी ने सोच लिया कि अगर मैं नहीं डालूंगा तो अंधेरे में क्या पता चलेगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछता। बिल्कुल इसी करके वो सक्सेस नहीं हो पाया सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका नाम क्या हुआ? जब भी कोई शेयर करेंगे अपना नाम एक बार बता दीजिएगा। जसवीर सिंह सर, बीडी रिटेल, G++S गंडू। हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ, बस नाम काफी है। कोई और जी ऐड सर करना जी। चाहेंगे इनके साथ कि ऐसे ही छोटा सा काम था लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया? कोई इसका रीजन क्या हो सकता है? मंजीत ने हाथ उठाया है, जो भी बोलना चाहे अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे सब दिख नहीं रहे हैं इसलिए हम सब। सर वो राजा ने खुद स्टार्टिंग नहीं करी दूध डालने की, इसलिए वो पॉन्ड वैसे का वैसे रह गया। फर्स्ट उसे ही स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, और कोई ऐड कर सकते हैं? एक छोटा सा काम था जिससे एक बड़ा विजन फुलफिल हो जाता लेकिन वो नहीं हो सर पाया। रेस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं समझे कि मेरा भी इसमें जिम्मेदारी Sir, बनता this है। is Santosh Parekar from Odisha. This is lack of team spirit. अगर सारे मिलके उसको अब दूध डालते हैं तो जरूर ये दूध का नदी हो जाता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई नहीं डाला। लैक ऑफ टीम स्पिरिट, अगर टीम स्पिरिट होता है तो ये जरूर दूध का नदी हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी कई बार होता है। कोई एग्जाम्पल आप सोच पा रहे हैं कि हम लोग सबसे छोटी छोटी चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं ताकि बड़ा विजन फुलफिल हो जाए, लेकिन वो कई बार हेलो नहीं सर। होता। हाँ हेलो हाँ, पूरी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, अब्दुल रहीम बोल रहे हैं सर। असल में जो आपने कहावत बताई है सर। हेलो। हाँ, बोलते जाइए। जो आपने कहावत बताई है सर, ये कहावत उस पर डिपेंड होती है कि एक दूसरे के ऊपर छोड़ देना हाँ, काम को, और काम पूरा ना हो पाना, तो अभी जिम्मेदारी न सवाल, करना। बिल्कुल, तो अभी सवाल ये है कि हम लोग के आसपास की जिंदगी में कोई ऐसा रियल एग्जाम्पल आप देख पाते हैं जहाँ पे ये चीज बिल्कुल हम लोग हाँ रोजमर्रा में सर। देख रहे हैं? हाँ सर। हाँ, बोलिए सर बोलिए। एक तो है हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि पॉलीथीन। मैं अकेले एक पॉलीथीन नहीं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे। तो बिल्कुल ये सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं अकेले से मैं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे पॉलीथीन इकट्ठा हो रहे हैं, और जैसे कि सॉइल पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये अगर सब लोग समझ लेंगे कि मेरे अकेले से ही कुछ चेंज हो सकता है तो हाँ, ये जरूर पॉलीथीन हट जाएगा। बिल्कुल 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 सही एग्जाम्पल दिया आपने। और कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसा एग्जाम्पल अपने आसपास जो आप देखते हैं जहाँ पे ऐसा ही चीज हो रहा है कि हम लोग अकेले लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं करते और लार्जर लेवल पे उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है? मोटर व्हीकल यूज करना सर पॉल्यूशन में। हाँ, मोटर व्हीकल यूज करना, या फिर आप लोग हम लोग देखते होंगे जब जाम लग रहा होता है तो फिर हम लोग नहीं और जाम लगाना शुरू कर देते हैं, एक के पीछे एक सिलसिलेवार तरीके से। शहरों में हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग वेट नहीं कर पाते। आजकल फेसबुक वगैरह पे आप देख रहे हैं ना, मिजोरम वगैरह के उस साइड का बहुत पिक्चर्स आ रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का ट्रैफिक डिसिप्लिन कितना ज्यादा है। फ्लाइट वगैरह में आप देखेंगे, अगर हम लोग को कई बार अ, उतरने का समय आता है तो हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। हम लोग वहाँ पे थोड़ा जैम पैक कर देते हैं।
वेस्ट कचरे का जो निकाल है, आप लोग तो बहुत सारे लोग एमपी से हैं, तो एमपी इज वेरी वेरी अहेड इन वेस्ट मैनेजमेंट। अदरवाइज वेस्ट मैनेजमेंट इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम लोगों से ये एक्सपेक्टेड है कि हम लोग अपने घरों पे ही कचरे को अलग अलग कर दें, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार मैं तो अलग अलग, मेरे अकेले के अलग अलग करने से क्या होगा, बाकी बगल वाला तो अलग अलग नहीं कर रहा है। या एक अपार्टमेंट है 16, तो उसमें जो कलेक्ट करने वाला आता है, अगर आप, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तो अलग अलग कर देते हैं, लेकिन कलेक्ट करने वाला जो भाई बहन आती है वो सबको मिला देती है। कलेक्ट करने वाले से पूछते तो वो भी यही बोलता है कि इस अपार्टमेंट में 16 फ्लैट्स है, 12 फ्लैट अलग अलग करते हैं, 4 अलग अलग नहीं करते, तो कोई फायदा ही नहीं है अलग अलग लेने से। तो इस तरह के एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लार्जर गोल में हम लोग फेल कर जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हमें वो टीम स्पिरिट की बात हो या विजन की बात हो या वो मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। और इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से इस कोट में, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। ये कई बार बहुत ही क्लियर तरीके से एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसमें आप ये देख पाएंगे कि हम लोग सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस चक्कर में कई बार जाने अनजाने में सोसाइटी या मदर अर्थ पीछे रह जाती है। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें देखने की कोशिश करेंगे कैसे छोटे से शिफ्ट से हम लोग अपने वेलबींग को भी इनहांस करेंगे और मदर अर्थ को भी थोड़ा सपोर्ट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है, तो अभी जो एक लिंक मैं चैट बॉक्स में डालूंगा, उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। तो गूगल फॉर्म में नॉर्मली 4 हेड्स के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे कंजम्पशन पे, फूड के अराउंड, फैशन के अराउंड, ट्रैवल के अराउंड और टेक्नोलॉजी के अराउंड। तो नॉर्मली सिंपल सा गूगल फॉर्म खुलेगा इस तरह का, इसमें इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, बहुत क्लियर क्वेश्चंस होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये फूड के कॉन्टेक्स्ट में है, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी कॉफी मिल्क डू यू कंज्यूम पर डे। हर दिन, हर वीक आप कितने कप चाय कॉफी दूध ये सब कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के बाद अगला इमीडिएट सवाल होगा कि उसमें आप कम कितना कर सकते हैं, रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ टी कॉफी मिल्क पर वीक। तो जो भी आप अभी ले रहे हैं उसमें कितना कम कर सकते हैं। तो जब कम करने वाला जब क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है कि हमें साधु नहीं बनना है, हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नजर नहीं फेरना है, हमें अपने कंफर्ट जोन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि अगर कुछ चेंज अगर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो वो चेंज एफर्टलेस होना चाहिए, वो चेंज किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। तो ये जो चेंज है, अभी हमारे कंजम्पशन पैटर्न से हम लोग कितना शिफ्ट कर पाएंगे, ये जो चेंज है वो भी सिर्फ आपको मजा आना चाहिए उस चेंज में। आपको लगना चाहिए नहीं, इतना तो मैं करना चाहूंगा, इतना तो मैं करना चाहूंगी, किसी के दबाव में आके नहीं करना है। क्लियर है ये कि आपसे पहला सवाल होगा कि आज के डेट में आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका इमीडिएट अगला सवाल होगा कि इस जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आप कितना कम कर सकते हैं। तो कम करते समय अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ, इससे आप प्रभावित मत होइएगा। तो जैसे मेरे लिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे हर दिन सुबह चाय चाहिए होता है नाश्ते में, तो मुझे वीक में 7 कप चाय चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि इसमें कम कितना हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं यार, मेरे लिए नाश्ते का चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़्यादा कम नहीं कर पाऊंगा, चलो वीक में एक दिन दूध वाला चाय नहीं पी के मैं ग्रीन टी पी लूंगा। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ ना, सिर्फ एक का हुआ। यहाँ पे आपको 7 - 1 6 नहीं लिखना है। ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि सारा गेम जो अभी हम लोग खेलने वाले हैं वो डेटा पे होगा। तो डेटा अगर आप सही भरेंगे तभी वो एनालिसिस सही हो पाएगा। तो चैट बॉक्स में यस या नो में आप लिख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया क्या। पहला सवाल है कितना आप कंज्यूम करते हैं, और अगला सवाल होगा कि उसमें आप कितना कम कर सकते हैं। कम में सिर्फ वो चीज लिखनी है जितना आप डेल्टा लिखना है, कम करने के बाद आप कितना कंज्यूम करने वाले हैं वो नहीं लिखना है।
अगर ये चीज समझ में आ रही है तो एक दो चार लोग कम से कम इसमें चैट बॉक्स में यस लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्योंकि यहाँ पे अगर एनालिसिस में आप 6 लिख देंगे या फिर आप अपना करेंट पैरामीटर लिख देंगे तो उस एनालिसिस पूरी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगला सवाल एक और सिर्फ समझाने के लिए, आप इस डेटा से आप प्रभावित मत होइएगा। जैसे अगला सवाल है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ पैकेज ड्रिंक्स, वाटर, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक एटसेट्रा डू यू कंज्यूम पर वीक? एक वीक में आप कितना पैकेज ड्रिंक कंज्यूम करते हैं? तो मेरे केस में है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बाहर कहीं जाता नहीं, तो चलो वीक में एक बार कभी बाहर दोस्तों के साथ जूस पी लिया, या कभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉटल ले ली, या कभी कोल्ड ड्रिंक ले लिया, एग्जाम्पल के लिए है। अगला सवाल इसका क्या होगा कि इसमें आप कितना कम कर सकते हो? तो मैं बोलता हूँ ये तो ऐसे ही बहुत कम है, तो इसमें मैं कुछ भी कम नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर है सबको? यस एक बार चैट बॉक्स में लिख दे या नो लिख दे, फिर से मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये डेटा ही बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो अब आपके चैट बॉक्स में एक मैं लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म के पास डाइवर्ट हो जाएंगे। और डेटा भरते समय बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको साधु नहीं बनना है, आपको अपना लाइफस्टाइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं तो वो चेंज जो होगा वो सस्टेनेबल चेंज नहीं हो पाएगा। एक बार ये लिंक पे क्लिक करके आप लोग चेक कर लीजिए, ये आपको गूगल फॉर्म की तरफ डाइवर्ट करेगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो प्लीज शेयर करेंगे। और ये क्यूआर कोड भी सेम प्रोसेस के लिए है, अगर आप नहीं सम लिंक वर्क नहीं करेगा तो आप क्यूआर कोड भी यूज कर सकते हैं। किसी के लिए भी अगर लिंक काम नहीं कर रहा होगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा चैट बॉक्स में। Sir, actually, you have sent the message link only to me. So you have अच्छा to. हाँ, आप शेयर कर दीजिए। Sure, ठीक sir. है, सॉरी मैं ये जूम सर वगैरह पे लिंक रिसीव नॉर्मली नहीं कभी हुआ कहाँ? नहीं मिलता। हाँ, अब कोई टाइप मत कीजिएगा, अभी अर्पिता जी ने शेयर Sir, I किया है have बस। sent everyone. Now हाँ, they can see. yes. I am not very technology friendly, so please sorry for that. पाँच सात मिनट लगेंगे, थोड़ा अच्छे से कहीं पे शांति से बैठ के इसको फिल कीजिएगा, क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एनालिसिस के लिए। और कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको कीजिए। फॉर्म भरते समय कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा।
गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए। सर जैसे हम मतलब वेजिटेरियन हैं, हम तो नॉनवेज लेते नहीं है, हाँ तो सर वहां पे नो डाल सकते हैं? हाँ, वहाँ जीरो आ जाएगा। नंबर डालना ओके। है, अल्फाबेट्स वगैरह मत डालिएगा, वहाँ जीरो आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। जी सर, मैं तो जो तीनों लिखा हुआ है, कॉफी और टी और दूध, हाँ, तो तीनों ही तो मैं लेता नहीं हूँ, तो क्या ले? कोई बात नहीं, तो जीरो डाल दीजिए दोनों में। लेते भी नहीं है और लेते नहीं है तो कम। जी। सर जैसे हम अगर कुछ कंज्यूम सर सर ऐसे यहाँ हेलो पे वाटर। हेलो। हेलो सर, अगर जैसे मैं कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ तो उसमें मैंने जीरो डाल दिया, तो उसमें बिल्कुल। फिर नेक्स्ट जो रिडक्शन वाला होगा उसमें क्या डाल? उसमें भी जब आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो तो आपका डिडक्शन बाई डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा। जीरो कर दे उसको भी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर बिल्कुल हाँ बोलिए। సార్ లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, అసలు లింక్ మాకు రాలేదు సార్, నాకేమో రావట్లేదు. लिंक डालना है दोबारा। ఎస్ సార్. डा, डाल दिया।
सर गूगल फॉर्म कंप्लीट भर दिया है। ठीक है, तो 5 मिनट 2 मिनट अभी रुकते हैं, बाकी लोग कोई भरने देते हैं, है ना। ओके सर। तो जिन हेलो, लोगों ने भर हाँ जी दिया है, सर, हाँ, कंप्लीट ठीक है। फॉर्म भर दिया सर। हाँ, हर साल एक कॉप की मीटिंग होती है, किसी ने सुना उसके बारे में? COP। कॉप मीटिंग होती है हर साल, जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं और हमारे क्लाइमेट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे हमारे मदर अर्थ को सपोर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं और प्लान्स बनाते हैं। तो किसी ने सुना है? नहीं सर। ठीक है। अभिषेक चौधरी जी बोल रहे हैं नॉट लिस्टेड, उसका क्या मतलब हुआ? किसी को अगर फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो अनम्यूट करके बताइएगा। सर मैं बोल रहा हूँ नॉट लिसन्ड, मतलब नहीं अच्छा, सुना ओके जो ओके आपने क्वेश्चन पुट किया। ओके दैट्स इट। ओके। हम लोग 2 मिनट और रुक जाते हैं, है ना, ताकि बाकी लोग का मिस ना हो। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ अभी 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 ज्वाइन हुआ हूँ मैं। सर कौन सा हाँ, फॉर्म भरना है सर? सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने एक हेलो। लिंक डाला है, आप वो चाहे तो भर सकते हैं, हालांकि आपको हाँ भरने में सर। समय लगेगा। हाँ, चैट में अभी मैंने डाला है, चाहे तो वो भर सकते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन है, ये ट्रैवलिंग वाला बाई कार, कैब या बाइक से आप कितने ट्रेवल हम्म करते हो? तो हम्म, इसमें सर एक डाउट आ रहा है कि जैसे जो जो भी हम ट्रेवल करते हैं वो एज पर नीड होती है हमारी, तो वो तो अच्छा, इतना कभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किया है, तो उसमें क्या करना है? एक अंदाजा लिख सकते हैं आप कि मैंने वीक में 1 बार जाते होंगे, या वीक में 2 बार जाते होंगे, या वीक में 10 बार जाते होंगे, उस तरीके से नहीं, वो एक तो रफ कभी आइडिया है। हाँ, जैसे कभी दिन में 2 बार भी हो जाता है तो नेक्स्ट डे कभी जाना ही नहीं होता है, तो फिर ऐसे कैलकुलेशन कैसे आएगा सर? इसीलिए बोल रहे हैं एवरेज एक डाल सकते हैं, एवरेज। अप्रोक्सीमेट। हाँ, अपने लिए आपका अप्रोक्सीमेट नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि इसके जो नंबर्स आएंगे उससे एक बार आपको बस आइडिया लग जाए कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। ये नंबर कैसे जान पाऊंगा हाँ, सर? तो जो भी लोग भर लिए हैं अपने मेल को आप चेक कर दिए, अभी मेल पे जाइए देखिए, तो आपको एक रिपोर्ट आया सर होगा। हेलो। हाँ, बोलते जाइए। हाँ जी, एयर ट्रैवल के लिए जो बोल रहे हैं वो मतलब बाहर का घूमने के लिए? कहीं भी, चाहे वर्क हो या अपने पर्सनल के लिए जा रहे हो, एयर ट्रैवल अगर आप कर रहे हो उसके हिसाब उसका है कि साल में 1 बार 2 बार 4 बार जो भी आप कर रहे हो। मतलब एरोप्लेन में तो? हाँ, एरोप्लेन में। हाँ। तो जो भी लोग सबमिट कर देंगे ना उनको एक मेल आ गया होगा, तो उस मेल में आप थोड़ा 2 मिनट समय लेके उसको पढ़ सकते। हाँ सर सर्टिफिकेट आया है सर एक। हाँ, एक रिपोर्ट आया होगा, सर्टिफिकेट तो बाद में शेयरिंग के लिए, एक रिपोर्ट आया होगा जी उसमें, देखिए। जी सर आया है। हाँ, तो वहां पे एक लिखा होगा कि आपने कितना केजीज बचाया, सर्टिफिकेट में भी वो लिखा है, सर्टिफिकेट खोल के भी आप देख सकते हैं। और जो भी आपका नंबर है वो आप चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए कितना आपने कार्बन एमिशन बचाया, तो एक आइडिया लग जाएगा एज अ ग्रुप हम लोग कैसा परफॉर्म कर। क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। आपके मेल में एक सर्टिफिकेट आया होगा और एक रिपोर्ट आया होगा, किसी भी चीज को आप खोलेंगे
तो उसमें एक जी डेटा जी आएगा कि आपने इतने केजीज ऑफ कार्बन एमिशन बचाए, तो उसको जी जब आप 185 हाँ तो वो आप बस उसमें डाल दीजिए किसमें? चैट बॉक्स पे, ताकि एक ओके बार पता चले कि एज अ ग्रुप हम लोग कैसा परफॉर्म किए। कोई कंपटीशन नहीं है ये, इस डेटा पे ही अभी हम लोग आगे का चर्चा करेंगे, तो उसके लिए है। एक दो लोगों को मेल नहीं आया वो आ जाएगा, और अगर बाई चांस ईमेल आईडी में कुछ मिस्टेक होगा तब नहीं आ पाएगा, ऐसा आई थिंक आ जाना चाहिए। अर्पिता जी, जी सर। हाँ कितने बजे तक का है हमारे पास समय? सर हम 5:15 तक ले सकते हैं सर। 5:15? यस सर, 5:15 5:30 तक हम चल सकते हैं, नो इश्यू सर। ओके ओके, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों ने दिया नहीं है, बट वेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि काफी लोगों का हो गया है। ठीक है, यस सर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। সার্টিফিকেট ডাউনলোড লিংকটা আসেনি। क्या मैडम? সার্টিফিকেট ডাউনলোড লিংক सर्टिफिकेट आपके मेल में आएगा, वो ऑटोमेटिक आप डाउनलोड कर सकते हैं मेल से। आप जैसे भी कोई भी अटैचमेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपसे तो मोबाइल में कुछ नहीं मेल आया है। नहीं। ठीक है, अब सारा फोकस आ जाइए इस सेशन पे, मेल वेल तो जिंदगी भर लगा रहेगा, आ जाइए। ठीक है, अब आप लोग म्यूट पे कर लीजिए और हम लोग अब सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो सेशन के शुरुआत में हमने ये बोला था कि माइंडफुल कंजम्पशन करने से हमारी पर्सनल वेलबींग भी इम्प्रूव होगी और हम लोग समाज के प्रति भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे समाज वाला एस्पेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि समाज में जो भी अभी आपने एक्सरसाइज किया, आपने अपने लाइफ में छोटा सा एक शिफ्ट लाया, बिना अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना अपने कंफर्ट जोन को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो जो भी शिफ्ट आप लाए उसका क्या इम्पैक्ट है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हर साल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कॉप की एक मीटिंग होती है। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं हर साल और ये डिसाइड करते हैं कि आगे के कुछ सालों में उनका काम करने का तरीका कैसा रहेगा, सो दैट क्लाइमेट चेंज का जो इतना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने उसको एड्रेस किया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले ही कॉप मीटिंग यूएई में हुई थी और उसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो इमेज दिख रहा है वो 2022 में ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में मीटिंग हुई थी, उसका इमेज है, जहाँ पे मोदी जी ने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए थे। उसमें एक कमिटमेंट जो हमारे काम का है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। उन्होंने कमिट किया था वर्ल्ड को कि इंडिया अपना टोटल कार्बन एमिशन जितना भी है उससे 1 बिलियन टन रिड्यूस करेगा 2030 तक। इंडिया ने वर्ल्ड को ये कमिटमेंट दिया कि 2030 तक इंडिया का कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन्स कम करेंगे हम लोग मेहनत करके। क्लियर है ये टारगेट? तो हम लोग अब ये देखते हैं कि इस टारगेट में हम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है। तो टारगेट क्या है? 1 बिलियन टन बाई 2030। यस या नो में लिखिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना हमारा टारगेट क्या है? यस या नो में चैट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा टारगेट है 1 बिलियन टन बाई 2030। ठीक है, टन को अगर केजीज में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से। तो हम लोग 1 बिलियन टन्स को केजी में करते हैं तो वो हो गया 1000 बिलियन केजीज बाई 2030। किसी को भी डाउट होगा तो अनम्यूट करके उसी समय पूछ लीजिएगा।
तो इंडिया ने वर्ल्ड को कमिट किया कि 2030 तक वो अपना कार्बन फुटप्रिंट 1000 बिलियन केजीज कम कर देगा। हमारे देश का पॉपुलेशन एक बार टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितना है, हमारे देश का अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितना है, भारत की आबादी कितनी है? ठीक है, तो 140 करोड़ के आसपास हम लोग कहते हैं हमारी देश की आजादी पॉपुलेशन है। उसमें मान लेते हैं कि 40 करोड़ लोगों को थोड़ा इस डिस्कशन में नहीं लेते क्योंकि उनके पास अभी उतने सारे रिसोर्सेज नहीं है। तो जो बाकी के जो 100 करोड़ लोग हुए, 100 करोड़ मतलब होता है 1 बिलियन। तो हमारे देश का टारगेट है 1000 बिलियन केजीज बाय 2030। पॉपुलेशन है हमारा 1 बिलियन। तो अगर 1000 बिलियन को 1 बिलियन से डिवाइड करेंगे तो 1000 केजीज पर पर्सन बाय 2030 आएगा। क्लियर है? ये नहीं क्लियर होगा तो अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। ये नंबर कैसे आया? क्लियर है? 1000 केजीज पर पर्सन बाय 2030 ये हमारे देश का टारगेट है। क्लियर है? ये लिंक अब बाद में शेयर करेंगे वामसी जी। हाँ, हमारा टारगेट है, देश ने जो कमिट किया है वो है 1000 केजीज पर पर्सन बाय 2030। ये डेटा पे क्लियर है? कैसे पहुंचे कि एक बार फिर से करें। फिर से करिए सर। हमारा इनिशियल टारगेट था 1 बिलियन टन्स बाय 2030। टन्स को हम लोगों ने केजी में किया, तो टन को जब केजी में करते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो सीधा सा हो गया 1000 बिलियन केजीज बाय 2030। और हमारे देश का पॉपुलेशन है 1 बिलियन, तो 1000 बिलियन को 1 बिलियन से डिवाइड कर दिए तो सीधे सीधे 1000 केजीज पर पर्सन बाय 2030 आया। और ये टारगेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस उन्होंने 2022 में किया था। उस समय हमारे पास 8 साल थे। तो अगर 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो हर साल का टारगेट हो जाएगा 125 केजीज पर पर्सन पर ईयर। मतलब हम में से हर इंसान अगर 100 सवा 100 किलो अपना कार्बन एमिशन कम करता है हर साल, तो हम लोगों ने जो वर्ल्ड को कमिट किया था वो अपने आप कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। सर कार्बन इमिशन को अगर साफ तौर पे समझा जाए तो क्या क्या उस कैसे समझेंगे? कार्बन एमिशन को साफ तौर पे बस इतना ही समझिए कि कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ पॉल्यूशन हो रहा है। उस पॉल्यूशन को, जैसे दूरी को हम लोग किलोमीटर मीटर में नापते हैं, वजन को हम लोग केजीज में नापते हैं, तो पॉल्यूशन को हम लोग कार्बन एमिशन में नापते हैं। उस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उसका एक कुछ ना कुछ एक कार्बन फुटप्रिंट है। कुछ ना कुछ कहीं पे पॉल्यूशन हुआ है, कुछ ना कुछ कहीं पे पेड़ कटा है, कुछ पानी यूज हुआ है, कुछ रिसोर्सेज यूज हुए हैं। उस रिसोर्सेज को आप तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत लगी है ना, वो कार्बन एमिशन उसको बताता है। ठीक है? तो अगर ओके, हम में से थैंक हर यू। इंसान 125 किलो हर साल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करता है तो ये बड़ा गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। तो अब अगर आप लोग देखेंगे अपने सर्टिफिकेट में और अपने रिपोर्ट में, तो जैसा चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 600 किलो, 500 किलो, बहुत सारे लोग ये टारगेट जो है वो पूरा कर पाए। और खास बात ये है, ये हम लोग कर पा रहे हैं बिना अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना अपने कंफर्ट जोन को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और उसमें एफर्ट लगाएंगे तो ये नंबर्स और ज्यादा बढ़ सकेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे एक्ट्स का कितना बड़ा वैल्यू होता है, वो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखा कि सब लोग अगर छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोगों ने जो वर्ल्ड को कमिट कर रखा है वो कमिटमेंट ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। तो इसको बहुत सुंदर तरीके से इस कोट में लिखा गया है, स्मॉल एक्ट्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपल कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग छोटे छोटे कार्य भी करते हैं, उससे देश, उससे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, यहाँ तक कुछ शेयर करना चाहते हो?
इस नंबर्स के अराउंड जो हम लोगों ने अभी किया कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना आपने बचाया और कितना हम लोगों से एक्सपेक्टेड है, इसके अराउंड किसी को भी कुछ इनपुट्स हो, कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई कि भाई समाज को क्या फायदा हो रहा है, मदर अर्थ को क्या फायदा हो रहा है, लेकिन आजकल हमारे विचार में होता है कि चलो मुझे क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो भी एक्ट आपने किया उससे आपका पर्सनल वेलबींग कैसे इनहेंस हो रहा है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पर्सनल वेलबींग की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे अपनी वेलबींग बढ़ानी है, तो किस तरीके से आप अपनी वेलबींग बढ़ा सकते हैं, क्या आप करेंगे जो आपकी वेलबींग बढ़ जाएगी। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, आप क्या करेंगे जिससे आपकी वेलबींग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, जैसे आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाएगी, आपकी खुशहाली थोड़ी और बेटर हो जाएगी, क्या आप अपने लाइफ में कर सकेंगे। कौन सी ऐसी चीज है, क्या क्या आप अपने लाइफ में करेंगे जिससे आप कहेंगे कि नहीं हमारी वेलबींग इंप्रूव हो गई। चैट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल को शिफ्ट करना है तो उसमें क्या करेंगे, पूरा एक दो छोटे से छोटे एक्टिविटी के बारे में लिखिएगा, एग्जैक्ट, है ना, कि जैसे अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, या लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना। हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, हमें कहना है कि और खुशहाल बनाना है या और तरक्की करनी है, जो भी आपको जो भी डेफिनेशन है अच्छी लाइफ का, तो आप कैसे कर सकेंगे। आज के डेट में किसी भी शहर में आप रहते हैं ना, गूगल करेंगे कि मेरे शहर का 5 बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो एमपी में हो, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे पटना में हो, चाहे दिल्ली में हो, तो आएगा वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, XYZ, इस तरह से मोर और लेस सब जगह ये सारी चीजें आपको देखने में मिलेंगी। तो अगर मोटे मोटे तरीके से अगर बात की जाए तो पर्सनल वेलबींग को हम लोग जैसा देखते हैं 3-4 चीजों पे मापा गया है। हेल्थ पे, कि मेरा हेल्थ कैसा है, मेरे पास समय कितना है, तो जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे समय कम होता चला जाता है अपने लिए, अपनों के लिए, तो समय पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और फाइनेंस के अराउंड कुछ हम लोग बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अगर थोड़ी और अर्निंग हमारी हो जाएगी तो हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर हो सकेगा। तो अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सरसाइज अभी हम लोगों ने किया उसमें जो भी नंबर्स आपके आए, 25 किलो, 50 किलो, 150 किलो, 200 किलो, उसका क्या रेलिवेंस है आपके सामने। तो अगर हेल्थ की बात की जाए तो एक तो है जो आप एफर्ट लगाएंगे कि चलो आप जिम चले जाएंगे, आप अच्छा खाना खा लेंगे, और दूसरा आपका हेल्थ, जो मेजर हेल्थ है वो डिसाइड करता है कि आपके शहर में आपके आसपास का वातावरण कैसा, इन्वायरमेंट हेल्दी, अच्छा एयर आप ले पा रहे हैं कि नहीं, आपके घर में जो पानी आ रहा है वो साफ पानी आ रहा है कि नहीं। तो एयर और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो आपके हेल्थ को बहुत प्राइमरली इम्पैक्ट करता है। तो अभी जो नंबर्स आपके पास आए 150 किलो, 100 किलो, उस नंबर्स का मेरे और आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नंबर का कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो उसका रेलेवेंस समझने की कोशिश करते हैं। ट्रीज का इतना इंपॉर्टेंस क्यों बोला जाता है हमारे समाज में, हमारे हमको क्यों बोला जाता है ट्री लगाना चाहिए, ट्री काटना नहीं चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंस क्यों है ट्री का, कोई शेयर कीजिए अनम्यूट करके या फिर चैट में, ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों है। सर क्योंकि मोस्टली ऑक्सीजन उसी से ही मिलती है सर। ठीक है ना। तो ट्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। तो आपके लिए सवाल ये है, आप चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि एक मैच्योर ट्री एक साल में कितना किलो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती होगी। एक मैच्योर ट्री एक साल में एटमॉस्फेयर से कितना किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती होगी।
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में जो दिमाग में आ रहा है लिख दीजिए। एक ट्री एक साल में कितना किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती होगी? फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक ट्री एक साल में कितना किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती होगी? किसी ने पाउंड लिखाया गूगल करके, ठीक है। तो उसका सही जवाब वही है कि आमतौर पे एक ट्री एक साल में करीब 20 किलो एब्जॉर्ब करती है। इसका क्या मतलब, वो आप देखिए कि जो भी आपने बचाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके सर्टिफिकेट में है या आपके रिपोर्ट में है, वो जो नंबर है अगर आप उसको 20 से भाग देते हैं तो उतना ट्री तो आपने ऑटोमेटिकली प्लांट कर दिया, उतना ट्री तो आपने ऑटोमेटिकली फ्री कर दिया। तो आपका जो भी नंबर था उसको आप 20 से डिवाइड करके टाइप कीजिए कितना आ रहा है, कितने ट्रीज आपने बचाए। जो भी आपके नंबर था कार्बन एमिशन का उसको 20 से डिवाइड कीजिए, उतने ट्रीज आपने बचाए। तो आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए कितने ट्रीज आपने बचाए। क्लियर है क्वेश्चन? जो भी आपके सर्टिफिकेट में या रिपोर्ट में है उसको अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने उतने सारे ट्रीज बचाए। तो कितने ट्रीज आपने बचाए? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 ट्री, 8 ट्री, 10 ट्री, 30 ट्री, 18.9 ट्री, 1.3, 3.6। तो हम लोग सभी लोगों ने मोर और लेस 1 ट्री या 2, 5, 10 बहुत सारे ट्रीज सेव किए। तो सोचिए कितना अमेजिंग है ये कि हम लोगों ने अपने लाइफ में छोटा सा शिफ्ट लाया, और वो छोटे से शिफ्ट लाने से जो भी नंबर ऑफ ट्रीज आप प्लांट कर रहे हैं वो आपने सेव कर दिया। मदर अर्थ का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुछ कुछ लोगों का तो यहाँ पे डेटा जैसा दिख रहा है 20-20 ट्री, 30-30 ट्री हम लोगों ने सेव किया। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने मदर अर्थ को किया, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर कंफर्ट जोन। ये वाला एस्पेक्ट क्लियर है आपको? इस पे किसी का कोई रिफ्लेक्शन? ये जो नंबर आया कितने ट्री आपने बचाए, इस नंबर पे कोई रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, कोई सोचना चाहेंगे, इस नंबर को महसूस करना चाहेंगे कि ये नंबर कैसा फील हो रहा है आपको? अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये तो हुआ कि ट्री ने कार्बन डाइऑक्साइड कितना एब्जॉर्ब किया। अब है कि हमें ट्री से क्या मिलता है, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो अगला सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल एडल्ट को एक साल में कितने ट्रीज की जरूरत है टू इंश्योर गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन? हमें एक अच्छा क्वालिटी का एयर मिलता रहे साल भर, उस चीज को इंश्योर करने के लिए कितने ट्रीज की जरूरत है एक इंसान को? गेस कीजिए और टाइप कीजिए। लिंक वगैरह सबको बाद में मिल जाएंगे, यहाँ चैट में अभी मत कीजिए, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हाँ, एक ट्री, हाँ, एक इंसान को कितने ट्रीज की जरूरत है ताकि उसको अच्छा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन साल भर मिलता रहे?
अगेन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो आप एक रैंडम गेस कर सकते हैं। 5 ट्री, 3 ट्री, 10 ट्री, तो इसका सही जवाब है 7 से 8 पेड़। एक इंसान को 7 से 8 पेड़ चाहिए होता है ताकि उसको साल भर अच्छा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल सके। तो आप अगेन आप अपना डेटा देखेंगे तो 60-70% लोगों ने उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑटोमेटिकली फुलफिल कर लिया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर पीस। कितना पावरफुल हो सकता है ये माइंडफुल कंजम्पशन को इम्बाइव करना। क्लियर है यहाँ पे कि कोई डाउट है? उसी तरीके से टाइम की बात हम लोग कर सकते हैं, उसी तरीके से पैसे की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, 5:15 जैसा हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा 1-2 पॉइंट को स्किप करते हैं। आपके रिपोर्ट में वो डिटेल में होगा, और अगर आपको आगे और भी समझना होगा तो आप मेल भी कर सकते हैं। पानी को एक हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पानी बहुत क्रूशियल है। तो पानी को समझने के लिए ये सवाल आपके लिए कि एक जीन्स बनाने में आपको क्या लगता है, एक जीन्स के लाइफ साइकिल में कितना लीटर पानी इस्तेमाल होता होगा? एक जीन्स के लाइफ साइकिल में, मतलब कॉटन उगाने से लेके हमारे यूज करने तक एक जीन्स कितना पानी यूज करता होगा? जीन्स जो हम लोग सब लोग मोर और लेस पहनते हैं, पानी कितना यूज करते हैं इसके बारे में आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। एक जीन्स अपने पूरे लाइफ में बनने से लेके डिस्कार्ड होने तक कितना लीटर पानी कंज्यूम करता होगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आपको सोचना नहीं है, बस जो आपके जहन में आ रहा है, जो आपको सही लग रहा है वो आप लिख दीजिए। इसमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। एक जीन्स पूरे लाइफ साइकिल में कितना लीटर पानी यूज करता होगा? है ना, बहुत सारे आंसर्स है, 10 लीटर, 12 लीटर, 800 लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है करीब 3000 लीटर। एक जीन्स अपने पूरे लाइफ साइकिल में कॉटन उगाने से लेके डिस्कार्ड होने तक करीब 3000 लीटर यूज करता है। अब सोचिए कि 3000 लीटर, अभी हम लोग जिस जनरेशन में रहते हैं ना, हमारे लिए कोई भी नंबर्स का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 3000 लीटर कितना बड़ा नंबर है। तो हम और आप एक दिन में कितना लीटर पानी पीते होंगे? एक दिन में कितना लीटर पानी पीते होंगे? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक दिन में नॉर्मली हम लोग कितने लीटर्स पानी पीते होंगे? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। अगर एवरेज 5 लीटर भी माना जाए तो सोचिए कि अगर हम लोग 3000 लीटर बोल रहे हैं एक जीन्स में, तो 3000 लीटर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 600 आता है। मतलब साल में अगर हम लोग सिर्फ एक जीन्स कम खरीदते हैं, साल में हम लोग सिर्फ एक कुर्ता कम खरीदते हैं, या जो भी आप करते हैं शॉपिंग, एक पीस भी अगर कम खरीदते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही पीस खरीदिए, कह रहे हैं कि सिर्फ एक पीस कम खरीदिए, तो आपने 1.5 साल जितना पानी बचा लिया, पीने का पानी। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे खुद के वेलबींग के लिए। इतना छोटा सा शिफ्ट किए और उससे कितना सारा अच्छा क्वालिटी का एयर, क्योंकि हमने ट्रीज बचाया, छोटा सा शिफ्ट किए, इतना सारा पानी हम लोगों ने बचा लिया। तो और क्या चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए? हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो कुछ और कर पाएंगे, हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो और क्या कर पाएंगे हम लोग? तो आगे हम लोग देखते हैं टाइम के बारे में, पैसे के बारे में। तो पैसे का तो सीधा सा रूल ऑफ थंब ये है कि जितने भी केजीज ऑफ कार्बन एमिशन आपने बचाए, उसको आप 150 से गुना कर दीजिए। मतलब अगर आपने 100 किलो बचाए तो उसको अगर आप 150 से गुना करेंगे तो आपने 15,000 रुपये बचा लिए।
तो सोचिए अगर आप 15,000 रुपये बचा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। 15,000 रुपये में तो एक हमारा एक छोटा सा वेकेशन हो जाएगा अपने परिवार के साथ। हम लोग कहीं घूमने जा पाएंगे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। उसी तरीके से आज के डेट में, अभी समय थोड़ा कम इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। समय की जब बात की जाए तो आज के डेट में हम लोग 2 घंटे 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे हमारा खराब कर रहे होते हैं। तो उसमें रोज आधा घंटा भी हम लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम कम करेंगे ना, तो साल में 180 घंटे हम लोग बचाएंगे। 180 घंटे मतलब करीब 7 दिन जैसा समय हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। 7 दिन में कुछ नहीं तो एक किताब हम लोग पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब, और वो नॉलेज हमारे पास आजीवन साथ में रहेगा। तो इस तरीके से किसी भी एस्पेक्ट पे मैपिंग की जा सकती है कि जो शिफ्ट आपने छोटा सा अपने लाइफ में लाया, उससे आपका हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, आपको टाइम कैसे ज्यादा बचेगा, पैसे कैसे ज्यादा बचेंगे, कि एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, किसी भी एस्पेक्ट में आप उसको चर्चा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू था, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। आप पूरा का पूरा डिटेल में समझने के लिए आपको जो रिपोर्ट गया उसको पढ़ सकते हैं, और आगे की चर्चा हम लोग दूसरे तरीके से भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और ये सारी बातें मैं और आप, हम लोग केवल नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। तो 4-5 ग्लोबल मूवमेंट्स के बारे में मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ फटाफट। जैसे वीगन का मूवमेंट के बारे में किसी को पता है? अनम्यूट करके शेयर कीजिए, वीगन का मूवमेंट क्या है। वीगन अगर आपने सुना होगा तो डेफिनेटली वीगन का मूवमेंट कोई भी अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। वीगन का मूवमेंट है कि जैसे वेजिटेरियन और नॉनवेज होता था, अब एक स्टेप और लोग आगे आए। उनका कहना है कि नहीं, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी अब कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। और उनका मेन इंटेंशन ये है क्योंकि आज के डेट में डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट को हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी जगहों पे गलत व्यवहार हो रहा है जानवरों के साथ, क्रुएल्टी हो रही है। तो मेन वीगन मूवमेंट का एंटी क्रुएल्टी एस्पेक्ट है कि अगर किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग बीइंग को आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर मेरे कंज्यूम करने से वो ट्रीटमेंट वैसा हो रहा है तो हमें कंज्यूम ही कम करना पड़ेगा। तो वीगन का मूवमेंट ग्लोबल मूवमेंट है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें मीट मतलब और डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल से जो भी कुछ कंज्यूम करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात। मिनिमलिज्म का वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है। तो मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि कम से कम चीजों में अपने जिंदगी आप कैसे बिता सकते हैं। उसके अराउंड भी बहुत सारे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स, अमेजन वगैरह देखते हैं तो ये मूवीज आप लोग देख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। गेम चेंजर्स और मिनिमलिज्म काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छा से आपको शेयर करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से इसको इम्बाइब किया जा सकता है। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है कि इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 333। इस इनिशिएटिव में जो लेडी हैं जिन्होंने ये शुरू किया था, वो बोलती हैं कि 33 सामान के साथ 3 महीने की जिंदगी जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पर्सनल आइटम्स, घर का कुर्सी और किचन का प्लेट नहीं, आपका जो खुद का पर्सनल आइटम है। जब आप किसी टूर पे जा रहे होते हैं तो जितना सामान आप इस्तेमाल करते हैं, आपके पर्सनल आइटम, शर्ट, पैंट, शूज, XYZ, कंप्यूटर और ये सब, वो सिर्फ 33 ही आइटम के साथ अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए 3 महीने तक। तो मैं पर्सनली ये काम पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, और ये लिस्ट है जो 33 आइटम मैं यूज करता हूँ। इसके अलावा मेरे लाइफ में कोई भी चीज मैं यूज नहीं करता। ये सब आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप बाद में इसको आराम से पढ़ सके। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। हमारे पास 10 मिनट का समय और है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1-2 स्लाइड और बचा है। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई इनपुट? ठीक है, तो हम लोग लास्ट में एक ही साथ ले लेंगे। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब भी कुछ हम लोग चाहते हैं करना, तो हम लोग, अभी जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आप माइंडफुल लिविंग प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो हम 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि हाँ मैं करना चाहूंगा। लेकिन वो जोश धीरे 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 करके
ठंडा होता चला जाता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के जैसा। तो वो जोश ठंडा ना हो, वो एक कम्युनिटी हमें एक साथ में मिले जो लाइक माइंडेड लोग की, जो एक दूसरे को मोटिवेट करती रहे। अगर उस वैसी कम्युनिटी का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके रिपोर्ट में फिर बहुत सारा लिंक्डइन हो या व्हाट्सएप हो, एक ग्रुप में आपको इनवाइट किया गया है, आप चाहें तो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस स्लाइड में वही चीज थी, क्योंकि जब भी कोई बिहेवियर चेंज की बात होती है तो उसमें साथ में सिमिलर थॉट्स वाले लोगों के होने से लाइफ की जर्नी बहुत इजी हो जाती है। इसीलिए उस तरह के ग्रुप्स में पार्ट लेना अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ये मीटिंग मैं एक स्टोरी के साथ एंड करूंगा। एक इंसान दलाई लामा जी के पास गया, शांति गुरु, विश्व शांति गुरु है। उस इंसान के पास सब कुछ था, तो लेकिन उसने बोला उनसे, दलाई लामा जी से, कि ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, तो ना प्रॉस्पेरिटी बहुत है बट पीस नहीं है। तो आई वांट, मुझे शांति चाहिए, मुझे दिशा दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे हेल्प मी आउट, आई वांट पीस। तो दलाई लामा जी तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला कि तुमने मुझसे पूछा कि आई वांट पीस, तो आप इसमें से पहले आई को कम करो। आई मतलब ईगो, ऑडियो को टिपल बोलो। और अपनी वांट को कम करो। आई वांट पीस। आप अगर आई को कम करोगे, वांट को कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली पीसी पीस आपके लाइफ में बचेगा। तो इसी छोटे से स्टोरी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पे इस स्लाइड के साथ एंड करना चाहूंगा। ये बहुत शानदार कोट है, आप लोग 1 मिनट समय लेके इसको पढ़ लीजिए। We have 2 lives and the second begins when we realize we have only one. कन्फ्यूशियस। ये मेरा लास्ट स्लाइड था। अभी 7 मिनट बाकी है, तो अगले 2-3 मिनट में किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। सेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन हो, कोई इनपुट्स हो, कोई फीडबैक हो, तो प्लीज आप शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि एक पिक्चर लिया जा सके। और पिताजी, आप ये कर सकेंगे क्या? श्योर सर। हाँ, एक बार उनको कैमरा ऑन करके 2-4 अच्छे पिक्चर्स ले लीजिए। किसी के कोई सवाल हो, किसी का कोई इनपुट हो, प्लीज शेयर करें। कोई सवाल नहीं है, ये एकदम बोरिंग था लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आ गया सर? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनपुट होगा, कोई ना कोई फीडबैक होगा, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी, कोई क्या लर्निंग हुई। हेलो। हाँ, सर आप गांधीयन एंड सोशल एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए हैं? हाँ, हाँ, वही मेरा प्रोफेशन है। Right, sir. Right. It's very useful and relevant, and definitely your today's lessons and session will help us to change our lifestyles and go for the protecting the nature. बिल्कुल। और छोटे छोटे शिफ्ट लेने से बहुत सारा हेल्प हो सकेगा, क्योंकि नेचर, मदर नेचर तो कहीं नहीं जाने वाली, कोई जाएगा तो हम ही लोग जाएंगे। तो इसलिए इट इज एसेंशियली फॉर अस, फॉर आवर ओन बेनिफिट, फॉर आवर ओन कमिंग जनरेशंस। हेलो। हाँ, जी बोलिए सर, मैम। सेशन तो बहुत अच्छा था, बहुत मीनिंगफुल था। मतलब मेरी जी एडवाइस है कि हमें जैसे गवर्नमेंट को ना कुछ रूल्स बना देने चाहिए। हम तो जो लोग एजुकेटेड हैं वो तो ये सब करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रूल कुछ बना दे कि हमने जैसे फॉरेन कंट्रीज में अलाउ किया हुआ है, तो मतलब हम बहुत हेल्प होगी। मतलब हम अपनी नेचुरल जो है अपनी अर्थ को बचा सकते हैं अपनी लाइफ में। जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम फिर कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे।
नहीं तो बिल्कुल जो मैम, आजकल जो ट्रांसपोर्ट इतना बढ़ रहा है, मतलब उससे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है ना इन्वायरमेंट का, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच सर। पॉलिसी वगैरह, हाँ, मैं एक मिनट रिफ्लेक्ट कर देता हूँ मैम पे। पॉलिसी मेकर्स भी जो होते हैं वो भी हमें और आप, हमारे और आपके जैसे ही लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में शेयर कर रहा हूँ, इसको आप जनरलाइज मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आया कि, म्यूट कर लें प्लीज। कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि चेंज लाने के प्रोसेस में चेंज होना हम लोग भूल जाते हैं, और वो सबसे बड़ा बॉटलनेक है डेवलपमेंट में। यस सर। तो ये सेशन जो है उसी चीज के लिए कि चेंज लाते लाते चेंज होना भी कितना इम्पोर्टेंट है। यस सर, पहले चेंज हमें होना, अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वही जैसा कि साधु नहीं बनना है, सब कुछ नहीं करते नहीं। हुए हम लोग कितना मीनिंगफुल जिंदगी जी सके वो हाँ इम्पोर्टेंट जी। है। वही इसमें यस सर। शोकेस करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको मेल आ गया होगा। मेल नहीं सर आया यस, है, हमें वो मेल आ चुका है हमें तो। फिर एक भी बता देता हूँ। मेल नहीं भी आया तो एक फॉलोअप मेल आपके पास आएगा जिसमें इनिशियल लिंक्स वगैरह आपको शेयर किए जाएंगे। जिनके पास ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट आ गया है, जिनके पास ऑलरेडी ये रिपोर्ट आ गया है, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि वो उसको जरूर शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अदर, क्योंकि यही एक कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग इमीडिएट कर सकते हैं। अगर आप 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 200 लोग अपने शेयर करते हैं, मुझे टैग करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को टैग करने की जरूरत नहीं है, उस पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा। लेकिन 200 को 200 भी फ्रेंड होंगे तो 40,000 लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाएगा। तो उस चीज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करें। और किसको, और सारा डिटेल्स आपके रिपोर्ट में है कि वो, अगर आप लिंक्डइन पे करना चाहते हो या फेसबुक पे करना चाहते हो और सर्टिफिकेट केवल करना चाहते हो, तो जो भी मीडिया आप यूज करते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। तो आज के जमाने में यही हो रहा है कि अच्छी चीजें शेयर करने से हम लोग हिचकिचाते हैं और बेकार की चीजें कंज्यूम करते रहते हैं। तो हमें अच्छी चीजों को भी शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी का सवाल हो, कोई फीडबैक हो, आप शेयर कर सकते हैं। नो सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो लास्ट में चूंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे कॉलेज को भी ये शेयर करना होगा। ये एक छोटा सा फीडबैक आपसे लेना चाहेंगे कि सेशन कैसा रहा। ठीक है, तो फिर से इसको चैट बॉक्स में मैं शेयर कर देता हूँ एक लिंक को, क्योंकि ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दी गई आप लोग के तरफ से, उसका फीडबैक मैं शेयर कर दूंगा। अर्पिता जी, आपको मैंने एक लिंक भेजा है, वो आप शेयर कर सकते हैं। सर अभी तक मुझे मिला नहीं है लिंक। पहले ही मैंने शेयर किया था, एक बार देखिए अपने अपने चैट बॉक्स में। सर इफ पॉसिबल, इफ यू कुड सेंड मी वाया व्हाट्सएप ऑल्सो, मैं इनके साथ शेयर कर दूंगी। हम ठीक है, ग्रुप में हैं सारे वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ। ठीक ठीक है, तो परफेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू आइसेक, थैंक यू अभिषेक सर, अर्पिता जी फॉर थैंक यू सर। कोऑर्डिनेशन। थैंक यू। काफी थैंक थैंक यू यू सो सर, मच थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड वी आर थैंक प्रीटी यू सो मच सर। श्योर, हमें पहले पता नहीं था कि हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं एंड इतना कार्बन एमिशन हमारे वजह से हो रहा है। बट वी ऑलवेज थिंक दैट वी आर जस्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप, बट नाउ वी आर प्रीटी श्योर दैट सारे छोटे कदम से ही मिलके एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट आने वाली है। एंड आई एम प्रीटी श्योर हम सब अब से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि हमें लग जाएंगे बहुत दिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, पर छोटी कोशिशों से ही आई गेस we'll be able to reach heights. Thank you so बिल्कुल। much sir for such an enlightening session. मदर Looking टेरेसा जी forward. का एक कोट है कि वी कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, ओनली स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। तो वो बहुत अच्छा इस पे चरितार्थ हो रहा है जो आज का सेशन का मैसेज है, कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो हम लोग करते रहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, छोटी छोटी चीजें भी करते हैं जिससे खुशियां और बढ़ेंगी, जिससे पीस और बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। चलिए, Thank you sir. Looking forward to more such collaborations with you. बिल्कुल, मिलते हैं।
And thank you everyone for joining us. Have a great evening. Thank you, Arpita ji. Ma'am, please send me link, ma'am.